Hi students, welcome again to chemistry solution. Now we start today carboxylic acid. Carboxylic acid. You have also learned about carbonyl compounds, that is aldehyde and ketones. Now we introduce about carboxylic acid. Carboxylic acid having carboxyl group COOH. Carboxylic group is originated from combination of carbonyl group and hydroxyl group That means carboxyl group is originated by the combination of carbonyl and hydroxyl group that is carbonyl group and that is hydroxyl group and forms carboxyl group. We can also say that carboxylic group is derivative of carboxyl derivative of hydrocarbons. That means when from alcohol hydrogen atom is displaced -H by carboxyl group COOH, then you will get RCOOH, carboxylic group. And carboxylic group having a general formula CnH2n plus 1 COOH. Now this carboxylic acids according to general formula CnH2n plus 1 COH. First member of carboxylic group is HCOOH. When number of carbon atom is 1, you will get formic acid. And next is CH3COOH, that is acetic acid. And next is C2H5COH, and will continue. Now
we study about classification of carboxylic compounds, carboxyl compounds, COH compounds. On the basis of number of carboxyl group, on the basis of number of carboxyl groups, on the basis of number of carboxylic group, carboxyl compounds are as follows. When HCOOH, that means that compound where only a single carboxyl group is present, that is monocarboxylic acids. Monocarboxylic acid, where number of carboxylic group is 2, then called as dicarboxylic acid, and where CH2COH single bond, CHCOOH single bond, CH2COOH, that is tricarboxylic acid, and also naming as formic acid. This is succinic acid, and that is citric acid. Now all of you, I introduced about carboxylic acids. Once again, carboxylic group is originated by the combination of carbonyl group and hydroxyl group. Carboxylic group is derivative. That means when you will get COH and the carboxylic compound is R single bond COH, at that condition we can say carboxyl compound is the derivative form of alkanes, and you will get RCOH. General formula of carboxylic acid is CnH2n plus 1 COH. And now classification of carboxylic acids. We can classify carboxylic acid on the basis of number of carboxyl group present in compounds. Where a single carboxyl group is present, called as monocarboxylic acid. Where two molecules of carboxylic acids are present, or 2 COH group is attached with a compound, that is called as dicarboxylic acid. And where 3 number of carboxylic acid is, carboxyl group is 3, then we say tricarboxylic acid, that is citric acid, succinic acid and formic acid. This is the introduction of carboxylic acid, and now we read about preparation methods of carboxylic acids. इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक देखा।
अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, तो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर IUPAC होता है, जैसे आपने लिख लिया CH3 CH2 CH2 COOH, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर का इसका जनरल जो नॉमेनक्लेचर है वो यही है कि एल्केनोइक एसिड होता है, एल्केनोइक एसिड होता है। देखें यहां पे आपके 1 2 3, तो इसे बोल देंगे प्रोपेन, और COH है तो प्रोपेनोइक एसिड, या इसे कह सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इस तरह से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहां भी अटैच कर सकते हैं, उस पोजीशन में या CH3 होगा, और एट दैट कंडीशन या प्रोपेन तो होगा बट 2 ओइक एसिड होगा। क्या हो जाएगा? 2 ओइक एसिड। इस तरह से इसका IUPAC भी आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं। एट फर्स्ट फ्रॉम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेते हैं, दैट इज RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल। आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एट फर्स्ट इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है और K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट कंपाउंड बनता है RCHO, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और फाइनली जब अगेन ऑक्सीडाइज होता है तो ये बना लेता है RCOOH। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर इसकी जगह पर हम एथिल एल्कोहल लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड, देन एसिटिक एसिड पाएंगे। अगर हम यहाँ पे मेथिल एल्कोहल ले लें तो फॉर्मल्डिहाइड एंड देन फॉर्मिक एसिड हम ऑब्टेन कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने CH3 CH2OH ले लिया और इसका ऑक्सीडेशन किया, हमें CH3 CHO मिला, जिसका अगेन ऑक्सीडाइजेशन किया तो क्या मिल गया? CH3COOH, एसिटिक एसिड मिला। तो यह प्रिपरेशन मेथड। इस तरह से हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। हमने क्या किया? प्राइमरी एल्कोहल लिया, इसका K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड बना और अगेन ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड सेकेंड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ acid halides, acid halide means RCOX acid halides होते हैं।
एसिड हैलाइड्स हैं, एसिड हैलाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस HOH, ऐसे लिख लेते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं HOH से। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप देखिए इस एसिड हैलाइड का हैलोजन एटम वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के HX फॉर्म करता है और यहां से निकल जाता है HX माइनस HX, क्या बचता है CO और H, OH आकर के यहां जुड़ जाता है एंड यू ऑब्टेन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बात करते हैं इस एसिड हैलाइड में अगर हम इस R की जगह पर CH3 और इस X के प्लेस पर अगर Cl ले ले तो यह कंपाउंड है जिसका नाम है एसेटिल क्लोराइड। एसिड हैलाइड्स होते क्या है? एक्चुअली जो एसिड हैलाइड्स है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। एसिटिल क्लोराइड है, अगर एसिटिल क्लोराइड ले लें और इसका हाइड्रोलिसिस करा दें HOH, और जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्या होगा, HCl यहां से एक्सट्रैक्ट कर जाता है, निकल जाता है और at the place of Cl hydroxyl group is attached. That means HX बाहर होगा, HCl पहले बाहर होगा and you will get CH3 C double bond to OH. That means acetic acid आप बना सकते हो, acetic acid। तो ये प्रोसेस है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। हाइड्रोलिसिस बहुत आसान रिएक्शन होती है। आपने क्या किया, HOH वाटर H2O है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, इसे जल में घोलने की कोशिश की, तो जो इसका एसिड हैलाइड का हाइड्रोजन एटम है वह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के HX बना लेता और OH डिस्प्लेस कर देता है इस H को। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट किसका होता है, OH का, एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आपने इसे देखा। अब देखिए नाउ सेम एज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या होते हैं, RCONH2 इनका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। देखिएगा इसमें इस एसिड एमाइड का हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं HOH। यह देखिए जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहां का NH2 इस H के साथ रिएक्ट होकर के NH3 बना लेता है। क्या बना लेता है, NH3 बना लेता है, एक्सट्रैक्ट कर जाता है RCOOH और निकल जाता है अमोनिया NH3 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, NH3 निकलता है, हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है और अमोनिया निकल जाता है। अगर हम इस प्लेस पर कोई भी R की जगह पर अगर CH3 लगा लें तो एसिटामाइड हो जाएगा। एसिटामाइड हाइड्रोलिसिस के बाद अमोनिया बना लेगा।
तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ो।